on this video W80 मैं generally 45 to 50 writing कर पाता He has था. made so many English mistakes, English language mistakes. Knowing language is no achievement, no accomplishment. Having a great character and finding solution to the challenges to your goal is accomplishment. Okay, give a big hand to Akhil Tyagi. So बाकी तो खुद ही बोलेगा, मैं नहीं बताऊंगा. This is, I think, one video where we are going to be wearing mask. पहले pre-COVID times में हम लोग बात करते थे ऐसे, तो मास्क नहीं होता था. तो आज हम times have changed. But what matters is what we are going to say. Face doesn't matter. Face does matter, but when you have constraints, we focus on what we are going to talk. And health is very important, so we have to take care of that. So this video is going to be with mask on. So और अच्छी बात भी है, कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, है ना? So Akhil Tyagi, you all know, you must have seen his video. He called me one day and told me, sir, I want to talk to you. And I just saw the videos and it has made a lot of difference in my life, and it made great difference while appearing in SSB. So I want to thank you. This itself speaks about his character. He could have well relaxed, but this is going beyond. I told you the other day, I did this, I did this, I did this. So at the end, he also wanted to thank. And by doing so, he has got a even deeper aim, and that is to reach out to more people so that they can also benefit. The real leaders make difference to others' lives in some way or the other. And you will see that his communication or his English language is not great. Okay? In fact, in YouTube channel, one fellow has said, bro, you are faking. And your English is not good. How can you get selected? I told you, all of you know it. If you are understanding, your understanding is good, your character is good, and you are a status changer and you're innovative, it doesn't matter, because we know that in times to come, your English will be great. So you will see, you have already seen in the video. And SSB knows it very well. And that is why you say, अरे कोई बात नहीं यार, थोड़ी बहुत अंग्रेजी की गलती करता है, मैं लड़का देखो हर चीज में इम्प्रूव करता है, तो इसमें भी कर लेगा आने वाले 4 सालों में. What's the problem in that? So, any sane thinking person, he knows this, and we all know that. So, when your understanding and character is good, your flow of ideas, your connectivity, your awareness. And another thing I want to tell today, I was just talking to some people. Real intelligence, real goodness in the intensity. Intensity. I want to observe things, I must be intense. I want to feel, I must be intense. I want to change the status, I must be intense. Intensity. आप समझते हो intensity? इसको कितनी शिद्दत से आप करना चाहते हैं, कितने जुनून से आप करना चाहते हैं. Intensity. And where does intensity come from? It comes from your here, inside the character. We have discussed about that at length. So if you have great character, intensity will come in everything that you do. Feel, think, observe, and act. Speak. Everywhere intensity will come. Get your intensity out. That's why today is a great day. Vivekanand ji's. Sorry, Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, great man. Where that thing came from? From inside. Intensity. Give me blood. He said with intensity, I give you freedom. He did with intensity.
all the great leaders and great people of this world, this humanity, they became so because they had intensity, shiddat, zunoon, that sense of urgency, that pain. And two things, as I told you, understanding and character. So understanding is good, but there must be a lot of character in you. Get it out. So now, with this preamble, let's see his intensity. You will see the flow of ideas and the way he speaks. And he has not, he just seen the videos. He never came here. He never attended any online. So get inspired. I want him to tell you whatever he told in the video. He was just alone and he was just talking. Now he has an audience. I want you to tell them your experience and how did it affect you, your life, and also your SSB interview, so that these people can get inspired, motivated. And that is why he has come here. So once again, give him a big hand. Over to you. So first of all, thanks to this sir. So now I'm going to introduce myself first. That I'm Akhil Tyagi. I passed my class 12 on the 2020. The first SSB was of the TES 44, that is the Technical Anti-Scheme 10+2 level. I was extreme now, and then just was about to say कि आगे क्या करूं, क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम आउट होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है, तो काफ़ी डर भी लग जाता है वहाँ पे, नर्वसनेस वगैरह एक्सेट्रा. तो फिर मैं कोचिंग्स वगैरह देखने लग गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया. Next is about the NDA 145 SSB will be going to be conducted at 2FSC Mysore on the 20 December. So मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप प्रिपेयर करूँगा. उसके बाद मैं YouTube पे एक्सप्लोर कर रहा था. Then I landed to the Lakshay YouTube channel. And the conduct sir, it is the first video of the lecture. That is, I have already said in my video. That there are the 5-point perception. It was also based on the brainstorming, and that is also the 5-point perception. So in that video, it was a very different approach from the others. That in the others YouTube channels and the other SSR will just usually say that most of the topics are from the used to on the मतलब जो current में होता है उसके बारे में पढ़ना होता है. तो ऐसे पहले भी मैं ये काम करता था कि काफ़ी ज़्यादा लेक्चरेट के टॉपिक्स होने, मतलब एक तरीके से सीधा कहूँ तो रटता था, ये पॉइंट्स हो जाएंगे. इनफैक्ट कुछ वेबसाइट्स पे कंक्लूजन भी उनके ही होते थे, हमारे भी नहीं होते थे. So all this made a very lot of the burden on me and made it very difficult that particular task, lecture it, which is not a very usual and high weightage in the SSB. तो इतने टास्क पे भी इतनी ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो फिर बाकी में क्या होगा. तो फिर जब मैंने ये वाला ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी शुरू की 5-point perception, सो पहली टाइम से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये चीज़. नेक्स्ट 3 मिनट तो बहुत ही कम पढ़ने लग गए थे एक भी लेक्चर रेट को टॉपिक करने के लिए, क्योंकि आई यूज टू बी वेरी फ्लो डेट मैं बोल जा सकता हूँ कि फर्स्ट इज अबाउट डेट व्हाट इज इट, सेकंड व्हाट आर द अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस, नेक्स्ट व्हाट आर द पॉइंट्स अबाउट इट, चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस अबाउट दिस. वेरी इजी मस्ट जो मैं देना होता है, बाकी सारे तीनों के शुरुआत के तीनों पॉइंट्स हमें जल्दी निकालने होते हैं. नेक्स्ट फोकस ऑन द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस. एज द सर had already said that about the leadership qualities only based upon the challenges and the solution. What you have said about the challenges, just overcome to the solutions, and about to how the leader is about the practical approach and to make by the creativity कैसे एक यूनिक सॉल्यूशंस उसके अपने हो गए वहां पर पे. और जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है कि जनरली हम क्या देखते हैं, हमें सॉल्यूशंस होता है तो जो भी एक्सपर्ट की एडवाइस होती है, जो भी टीवी चैनल्स पे होता है या फिर यूट्यूब वीडियोस पे होता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, हम सिर्फ उनके सॉल्यूशन से गैदर करते हैं, हमारे ऊपर कोई भी नहीं होता है. जैसे कि मैं लेक्चर टॉपिक्स ही बात कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पर भी हम अपने ऊपर अपने सॉल्यूशंस दे सकते हैं. जैसे कि मेरा जो टॉपिक था वो साउथ चाइना सी था. शुरुआत के तीनों पॉइंट्स मैंने जल्दी कवर किए, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस पे आया. चैलेंजेस मैं साफ था साउथ चाइना सी में कि अबाउट क्या चीजें वहाँ पे काफी ज्यादा उनका जो सर्विलेंस है बहुत ज्यादा हो रहा है, चाइना का डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पे जो कंट्रीज है, वियतनाम एंड दी होल लाइक दिस अबाउट दिस.
एंड नाउ द नेक्स्ट एंड द अदर थिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है। तो उसके एक अलग अलग पार्ट्स में आके वहीं पर भी 5 पॉइंट परसेप्शन किया कि अलग अलग सॉल्यूशंस कि अबाउट गवर्नमेंट लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज के साथ हम ज्यादा मैचअप कर सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में कर सकते हैं। तो ये सारे 5 पॉइंट्स पकड़े, इन पे आके डिलीवर किया। इट वॉज वेरी इजी। वरना हो क्या रहा था, जनरली लेक्चरेट के हमारे जो G2 का डे था उससे एक दिन पहले सारे के सारे बच्चे, मैक्सिमम ऑल 51 वाज द एक्सरी, इन तो जनरली उनके पास नोट्स लेकर के आए थे, सब रट्टा मार रहे थे कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, और सब एक दूसरे को बता रहे थे ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बट आई वॉज सो रिलैक्स, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरी एसएसबी में, सिर्फ अपना एसडी एक बार रिवाइज किया था मैंने, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। बाकी सब मोटिवेशन रूम होता है 2FSB मैसूर में, वहां पे जाकर के नोट्स बना रहे थे कि ये पूछ लेंगे यहाँ पर एसएसबी में ये चीज है, ये प्लेन के बारे में एक नोटिस बोर्ड में पूरा LD के बारे में, FCAT के बारे में, ये सब के सब ऐसी चीजें देख रहे थे कि ये पूछेंगे इंटरव्यू में। आई वॉज सो रिलैक्स कि जो भी होगा, जो भी पूछेंगे देखा जाएगा। वहां पर है तो सारी चीजें देख भी रखी है, ज्यादा अच्छी ठीक ठाक से नॉलेज भी थी मेरे पास, क्योंकि आई वॉज सो क्यूरियस अबाउट बाय द 5 PRCC। तो जनरली मैं चीजों को अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश ही करता था। So about all this, the lecture it was so well. And next is about the 5 BRCC exercise. About the 5 BRCC exercise, it was really well, very different mindset, and build a very unique leadership qualities in builders. Generally बाकी जगहों पर क्या होता है, सिर्फ 5-day प्रोसीजर के बारे में होता है, हर टास्क की प्रिपरेशन होती है, उनका प्रोसीजर बताया जाता है, कैसे करना है, ये सारी चीजें भी हो जाती है। लेकिन फिर ऑटोमेटिकली बात आ जाती है बच्चे पे, उसके अंदर अगर ऑलरेडी लीडरशिप क्वालिटीज इनबिल्ट होगी तो ये जाकर के रिकमेंड हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर पे लीडर भी बनाए जाते हैं, बताया जाता है कि लीडरशिप क्वालिटीज कैसे इनबिल्ट की जाए। तो वो सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट 5 BRCC हैव दी ऑल दी लीडरशिप क्वालिटीज दैट हाउ टू बी इम्प्रूव ऑल दिस। तो 5 BRCC एक्सरसाइज के बाद में दैट 5 अबाउट द 5 पॉइंट द परसेप्शन, द फर्स्ट। सो अबाउट किसी भी टॉपिक को भी समझना है, सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना है। हमें खुद पता नहीं होता हमारे पास पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है, तो अगर उसे भी जानना है तो उसे भी 5 पॉइंट में ब्रेक कर सकते हैं। लाइक हमारी हिस्ट्री क्या है, कि हमने ये हमारे ये बैकग्राउंड है। सेकेंड चीज अबाउट द पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव्स, हम कर क्या आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें क्या क्या चैलेंज आ रहा है, क्या सोल्यूशन, ऑल दिस कैन बी categorized into the 5 point the perception. Next is about next is think about the SSB, that किस एंट्री और किस सर्विसेज के लिए आप SSB देने जा रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उसके बारे में भी आपको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। तो वो भी कैटेगराइज 5 पॉइंट परसेप्शन। और द करंट में कोई भी टॉपिक चल रहा है, फार्म बिल्स एक्सेट्रा, कुछ भी चल रहा है, सारी की सारी चीज 5 पॉइंट परसेप्शन में डिवाइड हो जाती है, और बहुत ही अच्छा इससे हमें ब्रीफ नॉलेज मिल जाती है और क्लियर कट आइडिया मिल जाता है। 5 पॉइंट परसेप्शन में अगर कोई भी करंट टॉपिक मिल रहा है, जैसे कि फार्म बिल हो गया और भी कोई चीजें हो गई, तो जनरली उसे सोचिए कि उसे चैलेंजेस और सॉल्यूशंस में, वहां पर भी 5 पॉइंट परसेप्शन में उसे डिवाइड कीजिए कि ये सारी चीजें, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस, कि क्या क्या वहां पे चैलेंजेस आ रहे हैं और सॉल्यूशंस आपके खुद के थे। आप सॉल्यूशंस वगैरह यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऑफ कोर्स उन्हें हमसे ज्यादा बेटर नॉलेज होगी, लेकिन उनसे हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये चीजें भी हो सकती है, तो वहां पर वो सारी चीजें हो जाती है। नेक्स्ट इज हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं उन सारी चीजों को, ये तो हमें ही पता होगा, तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट इज अबाउट द रोल प्ले, 5 we have brainstorming, so it was brilliant as we say in the challenges and the solutions about in the lecture it was. So and next and the very most important exercise is the role play. Role play is the mother of all the 5 PRCC. Role play you can do at your home, by the family, friends, neighbors, even the shopkeeper, आप कहीं भी जा रहे हैं, role play is very much important. हर जगह देखा जाता है बिहेवियर, हर कोई 15 OLQs में ये सारी चीजें आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब उसे कैसे डेवलप करें, किसी को समझ में नहीं आता, क्या सिर्फ पढ़ लेता है, बुक्स में भी लिखी हुई होती है ये चीज है, कुछ समझ में नहीं आता, डेवलप कैसे करें। हर कोई वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स में भी पर्सनालिटी की बात आती है, पर्सनालिटी दिखते कैसे हो, चलते कैसे हो, और बोलने का तरीका क्या। हम जैसे ऑन एवरेज हमें सिर्फ इतना ही पता होता है पर्सनालिटी के बारे में, कि देख क्या रहा है, बोलता कैसा और चलता कैसा है, हमें अंदर का माइंडसेट हम नहीं पता लगा पाते, जो कि एसेसर्स वहां पे वही चीजें देखते हैं।
तो वहां पर रोल प्ले में ये कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। पहले इतनी अच्छी मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, लेकिन बाद में इससे रोल प्ले की एक्सरसाइज करने के बाद अपना कैरेक्टर ऑलरेडी अपने आप इंप्रूव हो जाता है। बाद में आकर के एसएसबी में ये सारी चीजें भी दिखाया, आई ऑलरेडी सेड इन माय वीडियो दैट इन द कमांड टास्क अबाउट द 8 ऑफ माय ग्रुप एंड द 7 बच गए थे मुझे छोड़ के, उनमें से 5 ने मुझे बुलाया। तो ये सारी चीजें दिखती है। आई डोंट नो इट इजली इट वाज बेनिफिटेड फॉर मी और नॉट, बट कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो रखी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द रोल प्ले। तो 15 OLQ के पीछे पड़ता है सारे कि ये 15 OLQs होते हैं। मैं भी पहले सर की वीडियो से पहले देखने के लिए मैंने भी अपने रूम में चार्ट्स लगा रखे थे, ये 15 OLQs होती है क्या, लेकिन उनके नाम के अलावा कुछ ज्यादा नॉलेज होती ही नहीं हमें। हाँ, डिटर्मिनेशन है क्या होती है, किस चीज में होती है, कि बस पढ़ो तैयारी करो, ये सारी चीज, लेकिन करना कैसे है नहीं आता कुछ ज्यादा चीजें। कॉन्फिडेंस, बस अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है वो कॉन्फिडेंस ये 15 OLQ ऑलमोस्ट सब में होती है, नथिंग वेरी ग्रेट इन दैट, बस लेवल होता है इन सारी चीजों का। तो वही सारी चीजें ये सारी 5 BRCC करने पे ऑलरेडी अपने आप इंप्रूव हो जाती है। एंड द अदर इज अबाउट द कैरेक्टर एंड अबाउट ऑल दिस। Next is about the connectivity exercise. So it was so brilliant in the WAT, W80. Before this video, W80 मैं जनरली 45 to 50 WAT कर पाता था, उसमें भी मैं खुद ही अपने आप को एसेस करता था बाद में। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं तो कमी रही जाती थी, इतने अच्छे मेरे नहीं जाते थे W80, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस इतने अच्छे नहीं बन पाते थे जनरली। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं जब सेट करता था तो एक बहुत ही कॉमन सा आता था टेबल। तो टेबल को देख के दिमाग में क्या आता है, टेबल बनी हुई आती है, उसमें क्या वुड से बना हुआ है, 4 पे उसके लेग्स होते हैं, तो उस पे सेंटेंसेस क्या बनेगा, टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, टेबल हैज 4 लेग्स, स्टूपिड सेंटेंसेस है। वहां पे ऐसे सर क्या समझ पाएगा हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। लेकिन कनेक्टिविटी एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ से कनेक्ट होते हुए जाती है चीजें, टेबल यानी कि वुड। अब कनेक्ट देखो, टेबल, वुड, फॉरेस्ट, ट्री, डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, तो यहां से सेंटेंसेस बनता हुआ जाएगा। डेट प्लांटिंग ट्रीज प्रिवेंट्स डिफोरेस्टेशन, तो यहां से एक सारी चीज हमें निकल के आगे बहुत ही अच्छा सेंटेंस बन जाता है ये सारी चीज। तो ये सारी चीजें बताने में टाइम लग जाता है, बट व्हेन यू आर यूज्ड टू ऑफ इट, इट इज ए गेम ऑफ इन ए मिलीसेकंड्स। तो कनेक्टिविटी एक्सरसाइज सो ब्रिलियंट, और ये हमारा माइंडसेट भी डेवलप करती है। लाइक टेबल की बात की तो सिर्फ टेबल ही दिख रहा है हमें, उसके पीछे की चीजें नहीं दिख रही, लेकिन जब कनेक्ट करते हुए जाता है तो कितनी सारी चीजें दिखी है, डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, फिर ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हमें पता लगती है। तो माइंडसेट ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, इससे नॉलेज इंप्रूव होगी, आपका कैरेक्टर इंप्रूव होएगा, जब भी आप किसी से बात करोगे आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी, वो भी अट्रैक्ट होएगा, काफी कुछ अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द क्यूरियोसिटी। सर कहते हैं ये भी 5 पॉइंट परसेप्शन में डिवाइड हो जाता है। डेट अबाउट आप क्या हो, उसके बाद सर्विसेज, अबाउट नेशन, करंट, वर्ल्ड, लाइक ऑल दिस। तो इसके बारे में भी क्यूरियोसिटी, कोई भी चीज आपके में आ रही है, पहले मैं भी ऐसे ही था, कोई भी चीज नई चीज आ गई इतना क्यूरियस नहीं था मैं बिल्कुल भी, कि कोई भी चीज मुझे नई चीज पता चली, जैसे मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो वहां पर कुछ चीज पता चली किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हाँ ऊपर से बस इसकी टर्म पता लग गई। लेकिन बाद में क्यूरियस होने के, जब मैं ये एक्सरसाइज फॉलो कर रहा था तो उसके बाद कोई भी टर्म आ जाती थी, फोन हम सबके पास ही होता है, तो जनरली आई यूज टू बी गूगल इट। उसके बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कि थोड़ी ब्रीफ ही, इतने डिटेल में नहीं जाना होता, लेकिन हाँ इनफ नॉलेज आ जाए उसके बारे में। सो दिस आर ऑल अबाउट द 5 BRCC एक्सरसाइज। It not improve just of your SSB performance. It improve your lifestyle, way of living, broad mindset, leadership qualities automatically. So it helps a lot. For SSB में अपने आप बिहेवियर चेंज होता है, इसके बाद हमें नहीं पता होता कि क्या क्या हो रहा है। जस्ट आप लीडर है, लीडर क्या होता है, ग्रुप को लीड करता हुआ होता है। तो वहां पर भी जैसे G2 टास्क होता है, वहां पर अपने आप वहां पर ग्रुप को सोचेंगे। जनरली क्या होता है, जो बच्चे कोचिंग करके आ रखे होता है, वहां पे प्लैंक होता है, बल्ली होता है, आगे चले जाते हैं, उन्हें सब पता हुआ होता है। लेकिन ये सारी 5 BRCC से एक्सरसाइज करने के बाद लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है, तो आप अपने आप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे ग्रुप के बारे में कि पूरे ग्रुप को लेकर के जाना। माइंडसेट ये अपने आप हो जाता है दैट आई एम नॉट द ओनली वन हु इज गोइंग टू बी रिकमेंडेड, द होल ग्रुप विल गोइंग टू बी रिकमेंडेड।
ये चीज दिखी भी, हमारे ग्रुप में से मैक्सिमम रिकमेंडेशन हुई थी 3, बाकी किसी ग्रुप में से इतनी रिकमेंडेशन नहीं हुई थी, क्योंकि हर किसी को चांसेस दे पाते हो आप भी, और बाकी भी अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रख पाता है। आप बेस्ट नहीं हो, परफेक्ट हो ही नहीं सकता कभी कोई, तो दूसरों के आइडियाज लेके, उनका भी ब्रॉड माइंडसेट होता है, उनका लाइफ जो अब तक उन्होंने जिया उनकी अलग होगी, उनके पास आइडियाज अलग होंगे, नॉलेज अलग होगी, तो उनका सॉल्यूशन ओरिएंटेशन भी अलग होगा, डिफरेंट वे में वो सॉल्यूशंस देंगे आपको। तो आपके सॉल्यूशन हमेशा बेस्ट नहीं हो सकते, उनके भी होंगे, तो उसे भी पिकअप करिए। और अगर हमने उनके पिकअप सॉल्यूशंस पिक किए और उनके अच्छा है, इसका मतलब हमें पता लगा कि उनके सॉल्यूशन अच्छा है, तो हमारा माइंडसेट भी तो अच्छा ही हुआ कि हमें पता है कि उनके सॉल्यूशंस अच्छे हैं, तो इस वजह से उसी तरीके से आगे जाना। सो अबाउट दी डेट, अबाउट दी एसएसबी के बारे में बात करूं, द फर्स्ट इज अबाउट दी OIR। इट इज नॉट ए वेरी, यहाँ पर तो करवाते भी होगे एक्सरसाइज, मैंने तो नेट पे प्रैक्टिस सेट्स थे वहां पर पे किए थे बस। नेक्स्ट इज अबाउट द PPTT। what is done in the PPTT just is about to watch about the, कोई भी पिक्चर आएगी, नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स, that what they are doing, male, female, age, sex, and next is about the what they are doing. The action is very important. Next is the very important thing, that goal. What is the goal? Next, किसी भी गोल को करने के लिए कोई भी चैलेंजेस आएंगे, नेक्स्ट चैलेंजेस के लिए हमें कोई भी सॉल्यूशंस करने होंगे, उसे सॉल्यूशन बस एक मत दो, 2, 3, 4 वहां पे ये सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से स्टोरी काफी अच्छी बन गई थी। मेरी स्टोरी में 3 थे, उसमें 2 मेल 1 फीमेल, एक डाइनिंग टेबल था, तो मैंने उसके ऊपर ही बनाई थी। स्टोरी नहीं बताने का मैं, हाँ सब क्या करूँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज अबाउट द नरेशन। नरेशन वाज कॉन्फिडेंट इनफ, I was practicing in front of the mirror, not of the narration, but the something of the else, about the pick up the some of the GD topics and the lecture it and used to deliver it in front of the mirror. Next is about the GD. तो GD में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है एज ए ग्रुप लीडर, एक तरीके से लीड करता है ग्रुप को, एक बहुत पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाता है। तो जनरली यूज्ड टू क्या करता है, उन्होंने जैसे कहा स्टार्ट, सब बोलने लगते हैं, फिर एक ही काम होता है, ऐसे सर को डिवाइड करना होता है ग्रुप को, वो डिवाइड कर देता है। उसके बाद फिर हर कोई अपना अपना बोल रहा होता है फिर भी, लेकिन बट यू हैव टू बी ए लीडर, यू हैव टू बी स्टिक ऑन योर पॉइंट एंड दूसरों को चुप करवाओ, नहीं हो रहे फिर भी अपने पॉइंट्स रखो, क्योंकि आपको करना ही होगा। वहां पे सब कोचिंग्स लेके आ रखे होता है, तो सभी बोलता है। मैंने किया, सारे बोल रहे थे, मैंने उनके चेस्ट नंबर पॉइंट वाइज की लेट मी स्पीक, और उसके बाद हमने कहा कि ये एज, मूड और ये एक्शन, ये सारी चीजें डिसाइड हो चुकी है। अब नाउ लेट कम टू दी ओवर दी स्टोरी थीम। स्टोरी थीम पे फिर मैंने उन्हें टाइम दिया, सारे अपनी अपनी स्टोरीज ही बता रहे थे, किसी ने दूसरे की पिक ही नहीं की। फिर मैंने कहा these are the emerging things over it, that the first and the second, and the for me the first one is that, and it is very beneficial because I gave the reasons. So the most of them are agreed and they just gave, और मैंने कहा अपने अपने actions और यहाँ पे डालो, तो it was a very good. So the result was obvious. I was satisfied with my performance. I was extremely. Next is about the next is the psychology. That is the PPT. The first test is the TAT. TAT just about the challenges and the solution. Next is about the WAT connectivity exercise and the SRT. SRT में कुछ नहीं होता, सिर्फ वो तो काफी ज्यादा इजी टास्क होता है, क्योंकि ज्यादा कुछ बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती ही नहीं क्रिएट। हमने यूजुअल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं और इसी तरह के सोल्व करते हैं। The sir has said that what is the given it is just over the 10% and what you have to be imagine it is 90%. तो वहां पर जो भी चीजें होगी हमें बस, मैं ये काम करता था, जो भी सिचुएशन है अपने आप को वहां पे इमेजिन किया और उसे इमेजिन करने के बाद साफ साफ पता लग जाता था कि ये बैकग्राउंड में मेरे पास ये भी चीज, ये रिसोर्स होगी, ये रिसोर्स होगी, उसके अकॉर्डिंग में अपना सोल्यूशन दे देता था। Not necessary that you have to be completed over the 60 SRTs, but what you have done, it will be going to be enough. That one of my friend who is already also recommended, he's just done about the 35 SRTs. So and I done the 47 SRT and the some of them are recommended to the 60 SRT. So it is not a very necessary task that you have to be done all the 60 SRTs. What you have to be done, it is the good and the your own response. Next is the self description. मुझे नहीं पता था मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, मेरे पास कोई असेसर नहीं थे चेक करने के लिए, बस
मैंने वीडियो देखी थी, वहां पर मैंने अपने सब पहले मैं जब टीएस के लिए गया था, मैंने वेबसाइट पे देखे थे, तो वहां पर सिर्फ एडजेक्टिव, रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, सब ये सारी चीजें दे रखी थी। मैंने तब भी बनाया था नाइस्टी, तो वही सारी चीजें आ रखी थी, कुछ भी नई चीज नहीं थी। लेकिन जब बाद में सर की वीडियो देखने के बाद मैंने लक्स एकेडमी की, मैंने बिल्कुल चेंज किया। वहां पर अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स बिना किसी डर के मैंने रखे। वहां पे नेगेटिव्स मैंने अच्छे तरीके से रख दिए थे। बस नेगेटिव्स में मैंने ये सारी चीजें लिखी कि मैंने एक और दो स्टेप लिख दिया कि मैं ये चीजें कर रहा हूँ इसे ओवरकम करने के लिए। तो इस तरीके से मेरा पूरा हिस्ट्री रख दिया था मैंने वहां पर सामने। नेक्स्ट इज अबाउट द जीडी, दैट इज द फर्स्ट वन इज द जीडी। इन द जीडी दैट वाज द वेरी यूजुअल कॉमन टॉपिक वर बी गिवन। उसमें सिर्फ यही बात होती है कि हर कोई वहां पर वो 3 लीड दे देता है, हर कोई अपनी अपनी लीड पकड़ लेता है और उसके बारे में बोलना होता है कि इसकी वजह से, ये इसकी वजह से। बट एज ए लीडर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट दैट व्हाई इट शुड बी। वहां पर इसकी वजह से तो है, लेकिन क्यों है उसे कोर्स करने के लिए उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे और उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। मैंने ये सारी चीजें देखी थी। डेट हमें दिया गया था कि अबाउट द हेल्थ एंड द सेक्टर, अबाउट ऑल दिस। तो मैंने हेल्थ सेक्टर पे कि उसे इम्प्रूव कैसे हो गया, सबने अपनी लीड्स ले दी थी। सो दी वेरी कॉमन पिक ऑफ द थीम इज अबाउट द अवेयरनेस। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, सबको अवेयरनेस के बारे में बोल रहे थे कि हाँ ऐसे अवेयरनेस है इन तीनों में से ज्यादा, और वो इसलिए सब। मैंने कहा हाँ अवेयरनेस तो है, लेकिन वो कैसे इंप्रूव होगी। सो आई कैन गिव माई पॉइंट्स दैट अबाउट द गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट कैन डू दिस, आवर ओन लेवल वी कैन डू दिस एंड दिस समथिंग दिस। मैंने अपने वही 5 पॉइंट परसेप्शन में उसे कैटेगराइज किया, अपने अपने पॉइंट्स दे दिए। बट द नेसेसरी थिंग इज दैट कि दूसरों को भी टाइम देना होता है वहां पर, तो उनके भी पॉइंट्स दो, एग्री होते हो तो करो, वरना नॉट नेसेसरी, अपने अपने पॉइंट्स दे दो। तो ऐसे दोनों जीडी टॉपिक्स हुए थे। इट वाज क्लियरली वेल। नेक्स्ट इज द जीपी एक्सरसाइज दैट द फर्स्ट एंड द वाज ओनली थिंग इन माय माइंड दैट व्हाट टू डू नहीं हाउ टू डू। जस्ट एक सिंपल सी चीज थी कि वहां पर एक सिंपल मैं बता देता हूँ इस एग्जांपल से कि वहां पर एक आदमी था जो काफी ब्लीड हो रहा था। हम लाइट हाउस पे थे, तो उसे हमें हॉस्पिटल ले जाना था। तो एवरीवन हैज सेड दैट वी हैव टू बी टेक दिस पर्सन टू दैट प्लेस, बट हाउ टू डू द इम्पोर्टेंट थिंग। तो वहां पर ये सारी चीजें आ रही थी। सबसे पहले उसे फर्स्ट एड भी देनी होगी, सब कह रहे थे, लेकिन सब फर्स्ट एड के बारे में बोल रहे थे, लेकिन कैसे देनी होगी। वहां पर लाइट हाउस था, हमारे पास कोई बोट वगैरह भी नहीं थी उस समय, वो भी खराब हो रखी थी। तो वहां पे मिलता है, तो वहां पे नेक्स्ट मैंने तो ये कहा था कि हम कोई भी एक कपड़ा लेके वगैरह, उसका जो ब्लीडिंग है हेड में हो रखी थी, तो वहां पर इसे बांध देंगे टू स्टॉप द ब्लड फ्लो। तो हाउ टू डू, व्हाट टू डू नहीं। तो नेक्स्ट इज अबाउट ऑल दिस। फिर मैं अपने पूरे ग्रुप को एक कैटेगराइज में ले गया था। हर कोई एक कोई भी चीज पकड़ ली, दूसरों को एग्री डिसएग्री कर रहे थे, एक कॉमन कंक्लूजन पे जा ही नहीं रही थी हमारी ग्रुप प्लानिंग। तो मैंने कहा अच्छा अब इस प्रॉब्लम पे तो हो गई। देयर वाज दी 4 प्रॉब्लम्स। The first problem has already done that. The many of us gave their solution. Okay, now talk about the second problems. So सब उन्होंने सोल्यूशन दिए, फिर मैं तीसरे पे ले गया उन्हें कि मेरा सोल्यूशन ये है, फिर 2, फिर चौथे पे ले गया, ऐसे ऐसे सबके बारे में डिस्कस कर दिया था। कॉमन प्लान तो आ ही नहीं पाता वहां पर। तो एंड द नेक्स्ट इज अबाउट द जीटीओ आउटडोर टास्क। इट वाज ए कॉमनली रियली वेल मेजर कॉन्सेप्ट। आप लोग तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस करोगे। वहां पर जनरली जो कोचिंग लेके आ रखे होता है वो प्लैंक उठाता है, बल्ली उठाता है, सबसे आगे चले जाता है। वहां पर उन्होंने दिख रहा होता है, सारी चीजें प्रैक्टिस होती है, यूज टू होता है वो काफी ज्यादा, तो वहां पर वो करते करते चले जाते हैं। ग्रुप अटक रहा था, काफी ज्यादा अटका था, और सेकेंड ऑब्स्टेकल हो ही नहीं रहा था। बस मैं था जो ग्रुप के सबसे पीछे था, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था वहां पे कि मैं कर लूंगा, तो मैं आगे क्यों जाऊं। तो लेकिन एट द बैक ऑफ द ग्रुप आई यूज टू गिव माई आइडियाज। कुछ भी आ रहे थे, जो भी आ रहे थे, मैं अपने आइडियाज दे रहा था कंटिन्यूअसली, मैं रुक ही नहीं रहा था, कंटिन्यूअसली दे रहा था। एंड नाउ द सेकंड थिंग इज कम, नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गिव द आइडियाज इन द इंग्लिश, यू कैन आल्सो गिव इन द हिंदी, क्योंकि वहां पर ऑब्स्टेकल्स होते हैं और उन्हें समझाना, जो इसके हाथ में प्लैंक या बल्ली होते हैं कि वहां पर डाल, यहाँ पर डाल, उसे इंग्लिश में हम इतनी इजीली नहीं समझा पाते, क्योंकि उन चीजों के इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक टाइम पे पूरा ग्रुप हिंदी पे आ गया था। सो दी जीटीओ सर है, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज, तो फिर हम आए। फिर डेट इज अबाउट ऑल दी जीटीओ आउटडोर टास्क। नेक्स्ट इज अबाउट द इंटरव्यू। तो ये चीजें ध्यान में रखी थी मैंने सिर्फ। द फर्स्ट इज अबाउट द 5 पॉइंट परसेप्शन एंड द सत्य में जाते, कुछ भी नहीं छुपाया, सारी चीज सच बताता चला गया। कुछ कॉमन क्वेश्चंस को मैंने प्रिपेयर कर रखा था,
उनमें से एक दो ही पूछे, बाकी जो भी चीजें पूछ रहे थे मैंने एक चीज पे आज में ध्यान रखी कि किसी भी चीज का आंसर एक सिंगल लाइन में नहीं देने का, मैं रीजंस दूंगा, वो सेटिस्फाई हो गए अपने आप स्किप कर देगी, काट देगी मेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली जाएगी। लेकिन मैं एक लाइन में आंसर देकर नहीं हूँ। जो भी मेरे पास थे उन्हें 2 से 3 4 5 पॉइंट पे जस्ट बिकॉज ऑफ द 5 पॉइंट परसेप्शन अपने रीजंस दिए, क्योंकि हमने कोई चीज किया, मिस्टेक किया या किसी चीज को चूज किया है। जैसे हाउ आई चूज द पीसीएम बैकग्राउंड, उन्होंने ये पूछा, उसे भी मैंने 5 पॉइंट में किया कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई डू नो व्हाई डू नॉट आई चूज द साइंस बैकग्राउंड आफ्टर माय 12th, उसे भी मैंने 5 पॉइंट में ब्रेक किया, उनके आंसर्स दिए, तो वो सेटिस्फाई हो रहे थे, ये दिख रहा था। क्योंकि मैं भी सेटिस्फाई था, क्योंकि मैंने ये चीजें क्यों चुनी है उसकी भी कुछ वजह थी, वो मैं साफ साफ उन्हें दे रहा था कि ये 5 पॉइंट है, मैंने इन वजह से मैं दे रहा था ये सारी की सारी चीजें। और जो भी वो सारी चीज पूछ रहे थे सिंगल लाइन में मैंने उनका एक भी आंसर नहीं दिया, पूरा दे रहा था। माई इंटरव्यू वॉज टोटली पर्सनल, देयर इज नथिंग लाइक दैट अबाउट द टेक्निकल थिंग्स, अबाउट द जनरल नॉलेज, जबकि मेरी ठीक है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, एंड इन द इंटरेस्ट आई also write there that I used to be watch the current affairs videos in the YouTube, but the interviewing officer has not asked me even a single question about it. तो उन्हें जो भी पूछना होता है खुद पूछते हैं, हम इंटरव्यू के बारे में ज्यादा तो प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, बस सच बोलो और कुछ भी नहीं चाहिए होता उन्हें। और जनरली हमने जितनी लाइफ जी है उसके ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर ही वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये सारी चीज हुई थी। मैं अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल सेटिस्फाई था। या जस्ट बिफोर द एसएसबी में अपना फुल डे देता था को प्रिपरेशन करने के लिए। मोस्टली टाइम मैं मिरर में स्पीक करता था, just because to increase my the confidence and also in the speaking skills, because the most of the time we have to be used to speak in the English in the SSB, and from the background where I am, the English speaking was not enough well, and it was not a common language. So just पूरा दिन दे देता मेरे पास। मैंने स्ट्रीम भी ऐसी चूज की थी क्योंकि the ultimate of माइन वाज डिफेंस सेक्टर, सो मैंने पूरा अपना टाइम स्पेंड कर रखा था इस चीज पे। रिटर्न के लिए भी मैंने किया था, एंड ऑल्सो दी वन मोर थिंग दैट आई हैव नॉट क्लियर्ड माय रिटर्न इन द फर्स्ट टाइम। सो आई उन्होंने ये भी पूछा था कि क्यों नहीं कर पाए, तो मैंने उन्हें रीजंस दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड आई ओवरकम दिस चैलेंजेस बाय दिस सॉल्यूशंस। तो ऐसे उन्हें मैंने सॉल्यूशंस दिए। नेक्स्ट उन्होंने TS44 के बारे में पूछा कि स्क्रीन आउट कैसे हो गए थे, तो मैंने उनके भी रीजंस दिए कि 1 2 3 these are the challenges and that's why I was failed and now the solutions that I gave them. So ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था, and about in the my video I have already cleared about it in a very clear manner. So अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, but क्लैरिटी से आप, जो बंदा कभी यहाँ नहीं आया उसने एक वीडियो देखा होगा, यू कैन अभी उसने जो वीडियो बनाया पहले उसको भी देखेंगे और आज की बात भी, he has understood every video and taken something from each video and he's worked on it. आप लोग यहाँ आने के बाद भी वीडियो नहीं देखते हो, that is very shameful. You must see, you are losing out. There are more than 150 videos. Every day you must see one recommended, one psych and one teacher and one leadership video. 4 वीडियो देखो, आपको देखो कहाँ जाते हो आप। This boy is a, आप देखो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, but look at the flow of ideas, look at the clarity, look at the solution finding ability. Well done, so proud, and look at the character. He has himself come up. नहीं तो कोई होता तो बोलता ठीक है हो गया अपना काम. Anyway, any question please ask. Raise your hand and he will nominate. Yes. So first of all, congratulations. And Thank you. How did you manage with your speed in the TAT story writing? I used to do the practice set from the YouTube. रोज एक प्रैक्टिस सेट करता था मैं, और वहीं पर ही अपने आप को खुद एसेस कर देता था उसमें। कि अब आप स्पीड के बारे में बात कर रहे हो तो जनरली हमें कुछ चीज़ नहीं देखनी होती, वहाँ पे प्रॉपर माइंडसेट होता है कि वहाँ पर हमें पूरी फिगर दिख जाती है। अब PPTT में तो हमें बाकी सारी चीज़ें देखनी होती है, अबाउट द एक्शंस एंड अबाउट द एज एंड द सेक्स, उसके बारे में कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वहाँ पर देखे इतने कैरेक्टर्स है, एक्शन दिया है, उसका गोल
आप जैसे हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसका गोल सेट करोगे, उसके चैलेंजेस हो गए, एंड दी 1 2 3 4 आर दी सॉल्यूशंस, तो वहाँ पर फ्लो बन जाता है. देयर आर दी नोट दी वेरी डिफिकल्ट पिक्चर्स विच इज गोइंग टू बी शोन यू. वहाँ पर काफ़ी भी इजी पिक्चर्स आएगी, और जनरली आप अपने आप से उसे रिलेट कर पाओगे. और वहाँ पर ये आपको प्रैक्टिस तो इसके लिए करनी होगी, क्योंकि ये इतना अपनी डेली लाइफ के लिए बेस पे नहीं होता. तो दैट्स ऑल. Anybody else? Okay. So you will be all curious to know. तो ये दिखता कैसे, तो तुम्हें एक बार उतार के दिखा दो तो कौन होते. यस सर. ओके, एक बार फिर से ताली बजा लो. यस सर. Okay, so I want to tell you again that कोई बात नहीं, चलने दो, कि इस लड़के ने वीडियोस का, ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट वीडियोस देखने के बाद. वैसे तो पाकिस्तान बांग्लादेश से भी लोग बोलते हैं कि हमने देखा और हम सिलेक्ट हो गए, बट अब और भी लोग आए हैं. एक बॉम्बे से, एक यही लड़का था, वो 23rd अटेम्प्ट में टीए में सिलेक्ट हुआ था. उसने भी बोला मैंने वीडियो देखी. बट जिस तरह से इसने बारीकी से देखा, क्योंकि ये ही आल्सो नोज कि मुझे थोड़े से टाइम में बताना, दैट्स व्हाई ही इज नॉट टेलिंग ऑल द डिटेल्स. इंग्लिश, ही हैज मेड सो मेनी इंग्लिश मिस्टेक्स, इंग्लिश लैंग्वेज मिस्टेक्स. Knowing language is no achievement, no accomplishment. Having a great character and finding solution to the challenges to your goal is accomplishment. And we know that he can do it, so we have passed it. SSB has passed it. So very well, because they know that he will improve. Because he knows the challenges to his English problem and the solution he will take. Within no time he will do it. So, those of you who feel कि भैया हमारी अंग्रेजी कमजोर, डोंट वरी, फर्स्ट फोकस ऑन द राइट थिंग, गोल, चैलेंज एंड सॉल्यूशन. दैट इज व्हाट मैटर्स. सो आई होप यू वुड हैव gained from his interaction. People for the PDC can go for 2 o'clock class, so जल्दी जाना है आपको, जल्दी से खत्म करना. And the others, please see the videos. 2 to 4, watch the videos. 1 recommended, 1 psych, 1 GTO, 1 leadership. 4 तो देखो ही देखो हर दिन. You know the list यार, बच्चों की तरह बताने की जरूरत थोड़ी है. And then you say, oh ये है, इसने बहुत बारीकी से देखा है और तब काम किया. पहले जाता था. How many times you were telling? सर Once. तो पहले ये सब तो करता था ना, तो क्यों नहीं ये सब हुआ, क्यों स्क्रीन आउट हो गया, क्यों चैलेंज सोल्यूशन, क्यों डिस्कशन में. बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोली हैं. हम सबको सिलेक्ट होना है, माइंडसेट विल चेंज. हम सबकी, नॉट माई स्टोरी बट द ग्रुप स्टोरी, नॉट माई प्लान बट द ग्रुप प्लान. आई हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट. सो you rest can go. Some people who want to interact with him can interact. Okay, thank you.